Now let us understand the Bollinger Band. Bollinger Band is again the very beautiful. It's a very beautiful ये है indicators हैं. My students many times use the indicators. ये क्या है? ये volatility measure करते हैं. क्या होता है? Anyway, okay, he is not available. I think he is not. Okay. Okay, we'll go to the Bollinger Band. जोन बॉलिंजर इन्होंने बनाया है ये, और इन्होंने क्या किया है कि एक वॉलेटिलिटी का बैंड प्राइस के ऊपर और नीचे रख दिया इनका. आपने ये स्टडी क्या होगा, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कॉन्सेप्ट आपको शायद मालूम होगी. ये इंजीनियर्स लोगों को मालूम है ये स्टैंडर्ड डेविएशन की कॉन्सेप्ट क्या है उनका. ये पहले मैं ये पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ग्राफ में. The bands are situated 2 standard deviations away from the average and then tell us when the prices are overextended and may be ready for the correction. So overextended means upper side में भी overextended हो सकता है, नीचे के साइड में भी overextended हो सकता है. Okay, overextended का मतलब ये नहीं कि upper side में, and it is ready for the correction. And when correction होने के बाद वो it will come down to the mean, उसका mean, and the 2 standard deviation volatility band is placed above and below the 20 days or 20 period simple moving averages. This is the standard default setting. 20 is a default setting. It is just the moving averages. और ये मूविंग एवरेज पर एक ऊपर के साइड में और नीचे के साइड में एक स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का एक बैंड बनाया जाता है. ओके, सो 220 स्टैंडर्ड डेविएशन. अब दिस मीन्स दैट प्राइसेस क्रॉसेस द, इफ इट इज गॉन अबव द स्टैंडर्ड डेविएशन बियॉन्ड द अपर or beyond the lower band, the 95% of the time price will revert back to the mean. And if it is 3 standard deviation, then 99% of the time it will reverse to the mean. This will happen, Smith. Price will reverse to the mean. Okay, price will reverse to the mean. So let us explain you this. So इसको आप निकाल देते हैं और बॉलिंजर बैंड का कॉन्सेप्ट ये करते हैं. ठीक है, अभी अपने को मूविंग एवरेज मालूम है. ठीक है, अभी मैं एक 20 डेज मूविंग एवरेज निकालता हूँ पहले. So you'll come to know what exactly एवरेज. ये 20 लेता हूं. देर इज ए साउंड, जस्ट अप्लाई दिस. ओके, नाउ यू विल सी ये जो मूविंग एवरेज है ये 20 डेज का मूविंग एवरेजेस है. एंड दिस 20 डेज मूविंग एवरेजेस, वेन एवर प्राइस टचेस हियर इट वर्क्स एज ए सपोर्ट, टचेस हियर इट वर्क्स एज ए सपोर्ट, टचेस हियर वर्क्स एज सपोर्ट, goes up and falls below, start selling. Okay, but ये it is simple, it's just moving averages. अब इसके इस मूविंग एवरेज के ऊपर और नीचे ये अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर बैंड लगाते थे तो कैसा दिखेगा, मैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब बॉलिंजर बैंड को मैं एक्सप्लेन करता हूं. अभी इसी पर हम यूज करते हैं. सी, ये ऑलरेडी 20 डेज का था ऑलरेडी. अभी देखो ये जो बॉलिंजर बैंड है, अपर बॉलिंजर बैंड, ये लोअर बॉलिंजर बैंड. ठीक है, वेनेवर प्राइस गोज अबव दिस एंड फॉल्स
within the Bollinger Band, there is a tendency that it will go to the mean, and then again it will start going up, and then again go up. So once the prices has gone above the Bollinger Band, and then the next candle falls below the Bollinger Band, here is the level at which we should be a seller. The first target is this, and the second target is this. Now here the second target नहीं हुआ, लेकिन first target आ गया. Similarly, अगर ये Bollinger Band के नीचे आ जाता है, ठीक है, ये two standard deviation lower band, this is a lower band, this is the higher band. ये lower band के नीचे आता है और next candle इसके ऊपर close होता है, तो there is a possibility that it will touch to the middle line. So there is a rise. I mean, it will go up, okay, from here. So, but I will tell you something more on this. Okay, doesn't matter. यही पर एक्सप्लेन करता हूं मैं, ठीक है, ये ठीक है. आपने देखा होगा, ये नोट्स में मैंने कुछ बातें मैं बताता हूं आपको. डिस्टेंस, लोकेशन ऑफ बीबी इज रिलेटिव. मीन्स क्या है, द करंट हाई मे बी द हायर देन द अर्लियर हाई. वी आर गोइंग हियर अगेन. ओके, करंट हाई, ये उतना अच्छा एग्जांपल नहीं है. ये हाई जो है ना, द करंट हाई मे बी द हाई देन द अर्लियर हाई. अभी इसका जो हाई की प्राइस जो है, आई डोंट नो व्हाट इज द प्राइस ऑफ द हाई, 2487, और इसका जो हाई है ये या ये है 2491. तो ये ऊपर नहीं है, but you will see that it is already hugging the upper band. But here this is not hugging the upper band. There is some space. थोड़ा स्पेस है यहाँ पर स्पेस नहीं है. This simply means that this was extended and this was extended, but the strength of this uptrend is not great. As a result, there is a space between the upper band and this price, so it is likely to fall. अभी यहाँ पर हम देखते हैं, सो ये एक बार टच किया, फिर नीचे आया, दूसरे बार टच किया, फिर नीचे आया, फिर तीसरे बार टच आया, फिर नीचे, चौथे बार टच. सो दिस इज ट्रेंडिंग कंटिन्यूसली, और फिर यहाँ टच होते गया, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल सी दैट इट इज नॉट टचिंग टू द अपर बैंड. तो आपको क्या करना है, इट इज नॉट टचिंग टू द अपर बैंड. ये जो कैंडल है नेक्स्ट टू दिस कैंडल, यहाँ पर सेल करना है, और ये जो कैंडल है इसके हाई जो है, इसको आपको स्टॉप लॉस रखना है. बस इतना स्टॉप लॉस लगा के आपको सेल करना है, ठीक है. एक्चुअली मेरे को और अच्छे एग्जांपल्स देखने हैं, सो आई विल जस्ट फाइंड आउट. ओके, इसमें फिर नोट्स में जाता हूं, और ये डिस्टेंस की एक एक्सप्लेन किया मैंने आपको. डिस्टेंस का मतलब ये देखो, यहाँ ऑलरेडी टच हो गया, यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन यहाँ नहीं टच हो रहा. ये डिस्टेंस है, लेकिन ये भी मुझे क्लासिक नहीं है. ये जो हाई है ना, इसका हाई ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पर डिस्टेंस आता है. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, बट दिस इज नॉट अवेलेबल. हर वक्त नहीं मिलता है ऐसा. यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ मिलेगा आपको. ये डाइवर्जेंस का मतलब ये देखो, दिस हाई
is higher than this high. But this has already touched the upper band, and there is no touching to the upper band. There is a distance. इसका मतलब ये जो राइज है, ये राइज उतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये राइज था, तो ये वीकनेस दिखाता है। और आप यहाँ पर ये 30 मिनट का है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दूसरा दिन है, ये एक दूसरा दिन है, ये दूसरा दिन है, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेड। बट जो लॉजिक है वो यही है कि इस तरह से डिस्टेंस आपको दिखना चाहिए। ओके, ओके, नाउ विल गो टू फर्दर। ये डिस्टेंस का पॉइंट हो गया। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, व्हेन द वोलेटिलिटी इंक्रीजेस means what? Price moving away from 20 days moving averages, the band will widen. When the volatility decreases, the band will become narrow. Okay, now I will explain you. Now see this here, यहाँ पर क्या हो रहा, अपर बैंड और लोअर बैंड ये ऑलमोस्ट नैरो रेंज में है, यहाँ तो बहुत ही नैरो रेंज में है, लेकिन ये जो है ये है एक्सपेंशन। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। लेट अस गो टू द डेली ओनली, बिकॉज ये 15 मिनट के वजह से क्या होता है कि डे चेंज हो गया ना, तो वो समझ में नहीं आता अच्छी तरह से। हाँ, दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। अपर बैंड एंड लोअर बैंड दे आर कॉन्ट्रैक्टेड, देर इज नो मच डिफरेंस। क्यों? क्योंकि देर इज नो वोलेटिलिटी, नाइदर डाउन साइड में वोलेटिलिटी है, नाइदर अप साइड में वोलेटिलिटी है। लेकिन यहां पर देखोगे, यहां पर एक्सपेंशन हो गया। ये अपर बैंड और लोअर बैंड में डिस्टेंस है, काफी कुछ डिस्टेंस है, यहां भी डिस्टेंस है। सबसे ज्यादा डिस्टेंस आपको मिलेगा यहां पर, यहां पर देखो, ये अपर बैंड, ये लोअर बैंड, ठीक है। When there is a expansion, this rule will be more useful. Again, we'll go to the notes. Contraction and expansion. When volatility increases, that means price moves away from 20 days moving averages, the band widens. And when volatility decreases, then the price moving back to 20 days, मतलब decrease होता है, मतलब 20 days moving average पर आता है, band becomes narrow. When there is a very tight narrow band, narrow Bollinger Band, this is called squeeze. And अगर ऐसा होता है तो they eventually price is likely to show sharp move. इसका मतलब ये बाद में अभी एक्सपेंशन होगा, रबर इफेक्ट जैसे होगा। ये अगर स्क्वीज हुआ है, ये अगर स्क्वीज हुआ है, तो इसका मतलब ये स्क्वीज हुआ है, तो ये एक्सपेंशन होगा इसका, आइदर अप साइड या डाउन साइड, ठीक है। ये नैरो बैंड, जब भी नैरो बैंड रहेगा तो इसका एक्सपेंशन होगा। ये नैरो बैंड है, ठीक है, तो आइदर अप साइड में या नीचे साइड में ये जोर से जाएगा, ये इसका मतलब ये है। हाँ, price is likely to show sharp move called expansion. When the price fails to touch the upper band, and this means that bearishness may come. Once it touches the lower band, bearishness starts. It will continue touching the lower band so long as bearishness is there. Crossover of the mean line from above can also be the shorting opportunity. ओके, ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इफ द प्राइस फेल्स टू टच द अपर बैंड, बेयरिशनेस मे कम। वंस इट टचेस द लोअर बैंड, बेयरिशनेस स्टार्ट्स एंड इट विल कंटिन्यू टचिंग द लोअर बैंड। सो फिर से हम यहाँ आते हैं। इफ इट फेल्स टू टच द अपर बैंड, और व्हेन देयर इज ए एक्सपेंशन, इट इज नॉट लाइक दिस, देयर इज एक्सपेंशन. This is contraction. When there is a expansion
and the price fails to touch the upper band, means what? It may bearishness may start, and once it touches the lower band, it will continue touching the lower band. Here we can say that the bearishness is really started. Of course you can short here also, but here is a confirmation. अभी यहाँ पर क्लासिकली जो बॉलिंजर बैंड स्टडी करते हैं और ट्रेड करते हैं, वो यहाँ वो निकल जाते हैं. व्हाट आई से, मेरा कहना ऐसा है कि अगर पहले बार टच किया ना, तो इट विल कंटिन्यू टचिंग, कंटिन्यू हगिंग दैट लोअर बैंड. तो आप इमीडिएटली आप उसको ये मत कीजिए, क्या बोलते उसको, निकले मत. इट विल कंटिन्यू टचिंग. अब पहले बार यहाँ देखोगे इट फेल्स टू टच द लोअर बैंड, मीन्स व्हाट? It may bullishness may start, and once it touches the upper band, it will continue touching the upper band. मुझे मालूम नहीं exactly आगे क्या हुआ, but it will continue touching the upper band now. Similarly, when the price fails to touch the upper band, ये already बता दिया. When the price fails to touch the lower band, bullishness may come. Once it touches the upper band, bullishness starts, and it will continue touching the upper band. So long bullishness is there. Crossover of the mean line from below is a buying opportunity. यहाँ से अगर crossover करता है, यहाँ it fails to touch, here also it fails to touch, यहाँ mean line को कट करता है तो there is a buying opportunity. Similarly यहाँ mean line को ऊपर से कट करता है तो there is a selling opportunity. Fail to touch, मीन लाइन को ऊपर से नीचे गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड वंस इट हग्स द लोअर बैंड, इट विल कंटिन्यू हगिंग द लोअर बैंड लाइक दैट. यहाँ पर कैसे हुआ? वंस इट टचेस द अपर बैंड, यहाँ आपने बाय कर दिया, इट टचेस द अपर बैंड, इट विल कंटिन्यू टचिंग द अपर बैंड. हियर यू विल सी दैट इट इज नॉट कंटिन्यूअसली टचिंग द अपर बैंड. दिस हैपेंस. शेयर मार्केट में कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर ऐसा 100% परफेक्ट नहीं होता है. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है. नाउ ये एक्सटेंडेड एंड ओवर एक्सटेंडेड के कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ. बहुत लोगों को क्या लगता है कि एक बार अगर टच कर दिया हायर बैंड को तो हमको सेल करना है. मैंने एक्सप्लेन किया आपको, हमको सेल नहीं करना है. व्हेन प्राइसेस टचेस द हायर बैंड, इट सिंपली सेज द प्राइस इज रिलेटिवली हाई in comparison with the 20 days moving averages. It does not signal the sale. The first touch to the upper band simply says price is extended. The second time touch to the upper band means it is overextended. तो हमको ये overextended situation देखना है, not extended. फिर अगर मैं फिर इसमें जाता हूँ, ये एक बार टच कर दिया तो दिस इज ओनली वंस ना, इट इज टच्ड वंस, सो इट इज एक्सटेंडेड. बट व्हेन अगेन इट विल गो अप हियर, हो सकता है इसके बाद में ये बैंड पे वाइडन हो जाएगा, देन विल कॉल इट इज ए ओवर एक्सटेंडेड. अब ये जब ओवर एक्सटेंडेड होता है, इट इज कंटिन्यूअसली टच हो रहा है, फिर ऊपर गया है, ये गैप बन गया जो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. ये समझ लो अभी ये इतने बार टच हुआ कि ये ओवर एक्सटेंडेड किसको बोलेंगे, ये प्रॉब्लम है. बट वी कैन कॉल इट दिस एज ए ऑलरेडी ओवर एक्सटेंडेड हो गया, कई बार टच हुआ, ये ओवर एक्सटेंडेड हो गया. ना जब ये ओवर एक्सटेंड हो जाता है तब क्या हम करेंगे? ठीक है, दिस इज एक बार टच हुआ, दूसरे बार, 3 बार, 4 बार, बहुत बार ओवर एक्सटेंडेड हो गया. तो ये यहाँ मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको. एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट वैसे के वैसे कभी भी नहीं रहते, तो आप ध्यान में रखना कि कैसे ये जो मैंने जो लिखा है वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करता हूँ. देखो, here it fails to touch the lower band. It simply means that bullishness may come, and once it touches the upper band, the bullishness starts,
it will continue touching the uptrend. Okay, then this 20 days moving average will work as a support. This is extended and this is overextended. So it is this overextended that I want to tell you. Now again here also you'll say that this is extended and this is overextended. I hope you are understanding extended and overextended. When there is a overextended जब बनता है, when the prices close of this candle is above the upper band, when there is a overextend, second बार टच होने के बाद overextended में, और then second candle when fall back within the Bollinger Band, आपको यहाँ पर सेल करना है इसके नीचे थर्ड कैंडल में, और ये आपको लगाना है स्टॉप लॉस, ये इसको स्टॉप लॉस लगा देना है, और फिर ये आपका पहला टारगेट बनेगा और ये आपका दूसरा टारगेट बनेगा। फिर आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ थोड़ा सा स्टडी किया करो तो यू विल कम टू नो कि यार यहाँ से तो मार्केट गया तो इट इज बेटर कि मैं यहाँ प्रॉफिट ले लेता हूँ। So that you can do because you have sold here, this was your stop loss and this was your target 43. So 2073 stop loss हो गया, 2022 आपने सेल किया, 50 रुपया का स्टॉप लॉस हो गया और ये टारगेट हो गया 43, 60 रुपये, 80 रुपये का टारगेट हो गया। ओके, अभी ये फिर से दिस इज द एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो गया और यहाँ ओवर एक्सटेंड हो गया। ये ओवर एक्सटेंड होने के बाद नेक्स्ट कैंडल व्हेन इट फॉल बैक विद इन द बोलिंजर बैंड एंड व्हेन देयर इज ए एक्सपेंशन, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेल करना है। इसके नीचे आता है तो आपको सेल करना है और ये आपका स्टॉप लॉस ये लग जाएगा। ये मैं इसको निकाल दे रहा हूं। I want to make this graph more clear. तो यहाँ आप सेल कीजिए, ये पहला टच यहाँ आ गया बोलिंजर बैंड को, ये आपका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट है। बट दिस फर्स्ट टच देन सेकंड टच यहाँ पर है, इट विल कंटिन्यू टचिंग। ओके, ये 50% लॉट यहाँ खत्म कीजिए, 50% लॉट यहाँ खत्म कीजिए और देन अगेन ये प्राइस इसका लो पार यहाँ था, पूरा का पूरा बॉडी ऊपर ही है, कहो तो बॉडी ऊपर है, ठीक है। तो लेकिन ये लेवल भी है ना, थोड़ा सा लेवल का भी ये उतना खास लेवल नहीं। तो एनीवे इस तरह से बोलिंजर बैंड का काम करता है। देखो ये क्लासिकल जो नोट्स में लिखा होता है ना, वो एग्जैक्टली ईच एंड एवरी यहाँ पर ये एट द मोस्ट ये कहते हैं कि फर्स्ट एक्सटेंडेड, सेकंड एक्सटेंडेड, तो ये ऊपर चला गया तो यू शुड बी अ बायर हियर, या फिर इसमें लोअर टाइम फ्रेम में जा सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम में जाके स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर ये कौन सा दिन है, 2 अगस्त का, वो टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो बॉलिंग अपना ये इसमें हम ज्यादा अच्छे तरह से सीखने वाले हैं। कॉन्ट्रेंट थ्योरी में टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं, वहां पर मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। तो ये ऑलरेडी मैंने बताया शॉर्टिंग कब करना है, व्हेन की टचेस द हायर बैंड सेकंड टाइम, और व्हेन प्राइस ड्यूरिंग द सेकंड टच is higher than the first touch and the price does not goes beyond the upper band, low and the close of the earlier candle is above the upper band and the next candle they when fall back within the Bollinger Band। अब ये कैसा है, यहाँ पर लिखा है लो और क्लोज, आइदर ये और ये, लेकिन लो नहीं रह सकता है तो क्लोज भी अगर है तो भी चलेगा। So you have to short, okay। लॉन्ग कैसे करोगे, सेम मेथड है, ओवर एक्सटेंडेड हो गया
और सेकंड टच में प्राइस जब नीचे आ गया है, बोलिंजर बैंड के नीचे आया और नेक्स्ट कैंडल बोलिंजर बैंड के ऊपर गया, तो नेक्स्ट कैंडल के हाई पर आप बाय कीजिए और नेक्स्ट कैंडल का और पहले वाले कैंडल का जो बियॉन्ड बोलिंजर बैंड था वो आपका स्टॉप लॉस रखिएगा। उसी तरह से बेचने का कैसा, ऑलरेडी मैंने ये बताया कि ये डबल टच जब होता है तो वो अगर हाई है तो ठीक है, नहीं तो डबल टॉप भी बन सकता है वहां पर। इसका मतलब मैंने जैसे एग्जांपल बताया ना आपको, ये सेकंड टच में यहाँ पर हायर गया है, लेकिन समटाइम्स इट डजंट गो हायर, ये उसी लेवल पर रहता है। ये लोअर गया, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वहां टच हुआ, एक्चुअली टच भी नहीं हुआ, यहाँ पहले बार टच हुआ, फिर यहाँ ऊपर टच हुआ ही नहीं, यहाँ भी हुआ नहीं। सो देयर इज ए डिस्टेंस, देयर इज ए डिस्टेंस हियर। तो ऐसे केस में भी आप ट्रेड कर सकते हो। when the price on the second touch when the price on the second touch makes the double bottom or double top formation, simply means volatility is lesser। बोलिंजर बैंड के ऊपर क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वोलेटिलिटी लेसर। उनका जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और 8 मूविंग एवरेज यूज करते हैं, बिकॉज वी वांट टू बी मोर एंड मोर एक्यूरेट, और जल्दी हमको चाहिए, मतलब क्विक चाहिए। अभी मैं इसी को मैं अगर बोलिंजर बैंड को ही मैं अगर चेंज करता हूँ तो यूल गेट वेरी गुड, लेकिन वो कैसा है, ये 8-2 समझिएगा। और सब ग्राफ में मैं इसको व्हाइट करता हूं, ओके अभी। और ये जो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज था, इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, यू विल सी दैट ये बैंड बहुत ही क्विक रिजल्ट देता है। हमारे एरिया में आते ही हमको बहुत क्विक रिजल्ट देता है, क्योंकि हमने इसको क्या किया, इसको ये मूविंग एवरेज 8 डेज का ही मूविंग एवरेज यूज किया। द मोमेंट इट क्लोज डाउन हियर, नेक्स्ट डे इट गोज अप। यहाँ पर टाइम एनालिसिस करेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में सिखाता हूं। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत बढ़िया मिलेगा आपको, अपना एरिया में आ चुका है। बोलिंजर बैंड को टच किया ऊपर, जैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ पर बहुत बार कैसा होगा, ये बहुत बार ये आपको ध्यान में आएगा। खैर चलो, इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में जब सिखाऊंगा ना, ये इट हैज ऑलमोस्ट क्लोज्ड अबव द बोलिंजर बैंड एंड नेक्स्ट डे द प्राइस हैज फॉलन विद इन द बोलिंजर बैंड। तो आपको क्या करना है, इसके लो को सेल कर दीजिए और ये आपका स्टॉप लॉस लगा दीजिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाले तो यहाँ 2022 पे ही सेल करेंगे, ही विल नॉट वेट फॉर लो का इसका 2017। यहाँ सेल करने का सवाल ही नहीं है, यही सेल कर देगा वो, क्योंकि ही न्यू अंडरस्टूड कि ऑलरेडी अपने एरिया में है। और ये सेकंड टच भी ये अपर बोलिंजर बैंड के ऊपर गया और देयर इज ए एक्सपेंशन, तो ओके। नाउ candlesticks patterns. Now candlesticks patterns is itself is a very big theory, and I will take the candlesticks patterns tomorrow, not today, because once we start the candlesticks patterns,
will continuously doing the same. So many patterns are there, and maybe that we'll learn some more. And from Monday onwards, we'll do some practice. So Zoom में already मैंने आपको बताया है. So let us chat में कोई सवाल है तो आप मुझे बताओ. Is there any questions? Poonam madam, you want to say something? हाँ बोलिए. सर बोलिए मैडम. आपने अभी जो एग्जांपल दिया था उसमें अपर बैंड में एक दो बार जब ऐसा टच हुआ है तो वो कंटिन्यूअसली टच हुआ है तो Yes. हर बार ऐसा जरूरी नहीं है ना कि एक बार अगर टच हुआ तो फिर वो फॉल ही होगा. नहीं, बिल्कुल नहीं. On the contrary, a very good question, and I want to highlight this answer to this question. See, many people what they do, they think that once it touches the upper band, then it will fall, isn't it? And therefore they start selling. लेकिन ये एकदम wrong है. मैंने यहाँ कहीं तो भी लिखा है. Hugging to I will show you the notes where notes में मैंने specifically लिखा है. देखो, when the price fails to touch upper band, the bearishness may come. Once it touches the lower band, bearishness starts and it will continue touching the lower band. तो इसने लोअर बैंड को टच करते बराबर आप बाय करोगे तो यू विल बी मेकिंग अ बिग मिस्टेक. ये कौन बाय करते हैं? जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, उनको लगता है लोअर बैंड को टच किया तो अभी मेरे को ये ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ अभी बाय करूंगा. नो, ऑन द कॉन्ट्री व्हाट आई सेड that it will continue touching the lower band. This is called walking the band, or this is also called hugging the band. It will continue hugging the band. Similarly, upper side में when it fails to touch the lower band, bullishness may come. Once it touches the upper band, bullishness starts. On the contrary, when it touches the upper band, bullishness starts. People sell, will not sell, will say that now real term से bullishness start हो गया, strong बन गया, and it will continue touching the upper band so long bullishness is there. तो एब्सोल्युटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो ये कहीं भी आपको इंटरनेट में लिखा नहीं. यहाँ पर इंटरनेट में क्या लिखा होता है या फिर जो भी ट्रेनर सिखाते ना, वो ये बताते हैं कि अपर बैंड में चला गया ना तो फिर वहां से गिरेगा, लोअर बैंड में चला गया ऊपर से ऊपर जाएगा. नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि सेकंड टच इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है. द बैंड जो है, एक्सपेंशन इन द बैंड इज इंपॉर्टेंट, एंड फर्स्ट टाइम टच करता है तो इट विल स्टार्ट हगिंग दैट बैंड. सो एब्सोल्युटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. ये मेरा जो बोलिंजर बैंड की कॉन्सेप्ट है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है. सो यू अंडरस्टूड मैडम? Yes sir, but then what do we do? If it is hugging the upper band and we want to start selling, then should we wait for it to come below the upper band? Of course, let it fall below the upper band. When it is the second touch, सेकंड बार हग होने के बाद अगर वो सेकंड बार वहां पर टच हो रहा है, बराबर है, एक कैंडल ने ऊपर चला गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल बैंड के नीचे आ गया, ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल को लो है ना वहां पर सेल करो और फर्स्ट कैंडल का हाई है वो स्टॉप लॉस रखो. ये देखो यहाँ पर लिखा है, when price during the second touch is higher than the when price goes beyond the upper band, upper BB, lower close of the earlier candle, first candle is above the upper band, and the next candle when fall back within the Bollinger Band, that closes below the Bollinger Band, one can sell or short when the third candle crosses the low of the
current candle. So there are 3 candle theory. I'll explain you again here. यहाँ पर मैं डेली में जाता हूँ, थोड़ा सा क्लियर ध्यान में आएगा. See what I say, ये कंटिन्यूसली हगिंग हो रहा है, ये फॉर द फर्स्ट टाइम ये ध्यान में आ गया कि ये डिस्टेंस है यहाँ पर, ठीक है. मतलब टच किया नहीं, मैं टच किया वाला एग्जांपल देता हूँ. ये टच किया वाला एग्जांपल देता हूँ. यहाँ पर देखिए, ठीक है. दिस कैंडल closed above the Bollinger Band. Next candle fall back within the lower Bollinger Band. Now यहाँ पर आपको सेल करना है, यहाँ पर. और ये जो है ये स्टॉप लॉस रख देना है. एक्चुअली थेरोटिकली स्टॉप लॉस ये है, ये इतना लंबा है तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जाके हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं. सिमिलरली ये यहाँ क्लोज बिलो द लोअर बैंड, उसके बाद देयर इज ए एक्सपेंशन इज देयर एंड इट फेल्स टू टच द लोअर बैंड. ओके, तो यहाँ पर बुलिशनेस आ गया, यहाँ पर बुलिशनेस आएगा. अब वो एग्जांपल जो मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल नहीं, मैंने 2-3 चीजें बताई आपको. एक तो व्हेन देयर इज ए स्पेस, व्हेन देयर इज ए डिस्टेंस, बुलिशनेस में कम. और यहाँ नीचे आके यहाँ से ऊपर जाएगा, then also bullishness come. When there is a distance, bearishness may come, or when it goes above and then fall back, bearishness may come. So दोनों एग्जाम्पल, ये क्लासिकल एग्जाम्पल ये है. This is the second touch, first touch, second touch. Second touch में प्राइस ऊपर चला गया, closed above the band. The next price came within the Bollinger Band. That green line के नीचे है ना, within the Bollinger Band. अबे within the Bollinger Band जो है, इसके नीचे आप सेल कर डालो, इसको प्रॉफिट, इसको ये कर लो, स्टॉप लॉस रख दो. यहाँ पर भी आप थोड़ा सा देख सकते हो, यहाँ देखोगे अच्छा यहाँ मिलेगा आपको. ये एक्चुअली क्लोज नहीं हुआ नीचे यहाँ, बट देयर इज ए स्पेस, डिस्टेंस. यहाँ पर बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हुआ था, नेक्स्ट कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, ठीक है. ये नेक्स्ट कैंडल के यहाँ पर आप बाय कर दीजिए, इसको स्टॉप लॉस लगा दीजिए. इसके हाई पर बाय कीजिए, और ये स्टॉप लॉस लगा दीजिए और चलने दीजिए. बट हियर अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस बॉलिंजर बैंड है ना, इट इज द प्रोडक्ट विच इज टेकिंग द मूविंग एवरेज. ये 8 days मूविंग एवरेज लिया. तो ये अगर बैंड्स जो है ना, ये हमारे लेवल्स पर अगर आते हैं, मतलब ये हमारे जो पुश एरियाज जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रेंट कॉन्सेप्ट में, तो ये दिस विल गिव बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे. लेकिन कॉन्ट्रेंट कॉन्सेप्ट में नहीं आते फिर भी ये रिजल्ट देंगे. वो अगर कॉन्ट्रेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं तो एक्स्ट्रा गुड रिजल्ट देंगे, बस इतना ही है. बट अदरवाइज भी आल्सो ये गुड रिजल्ट देंगे. सो मैडम, एनी अदर क्वेश्चंस? One of my student, he is not there yesterday. He was not there yesterday also, but day before yesterday only we have a meeting with him. So can you imagine how much money he has earned out of 45,000 per within the last 6 months or max one year, I think. I don't remember one year or six months. Can you imagine? पूनम मैडम, can you imagine 50,000 का उन्होंने कितना बनाया? बताइए सर. सर पहले आप तो बताइए, आप तो अंदाज तो लगाइए थोड़ा सा. सर 50 का 1 होगा. हाँ, 1 लाख.
हा तुम्ही नडंगीची तुम्ही सांगा. डबल म्हणजे 1 लाख हवा. तुम्ही एक्सपेक्टेड ॲट लीस्ट. He has earned 4 lakhs. Thank you very much. Now I am